اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. نظر آ رہے ہیں پتھروں کے ٹوٹے ہوئے. یہ وہ ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے. لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. الحمدللہ مکہ المکرمہ سے ہمارا طائف کا سفر شروع ہو چکا ہے اور یہ تقریباً 140 کلومیٹر کا راؤنڈ اباؤٹ سفر ہے اور تقریباً انشاءاللہ 2 گھنٹوں کے آس پاس ہم طائف میں پہنچ جائیں گے اور پھر طائف کی جتنی بھی زیارات ہوں گی وہاں پہ جا کے آپ کو کرواتے ہیں انشاءاللہ. پہاڑ جہاں پر قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ پر بیٹھ کر اوپر غار ہرا ہے جہاں پر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. اسی پہاڑی پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے. جبرائیل علیہ السلام اترے تھے قرآن مجید کی پہلی وحی لے کر نازل ہوئے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس وقت ہم طائف شہر میں داخل ہو گئے ہیں لیکن یہ نیا شہر ہے. جو پرانا طائف ہے وہاں ہم بعد میں جائیں گے. یہاں سے طائف سٹی جو نیو طائف سٹی ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. طائف کی زیارتوں میں ہماری سب سے پہلی زیارت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار. اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں باب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور ابھی جس مسجد میں جا رہے ہیں یہ مسجد بھی آپ کے نام سے منسوب ہے. اور ابھی قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ اس 4 دیواری کے اندر پرانے مکانات بھی موجود ہیں جہاں آپ تشریف فرما رہے, آپ کی رہائش تھی, وہ بھی اندر چل کے دیکھتے ہیں اور مزار شریف پہ سلام بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کو بھی مزار دکھاتے ہیں. یہ مسجد کا نام لکھا ہوا ہے جامع عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ابھی چونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ابھی ہم نماز عصر ادا کریں گے اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد اپنی زیارات کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ یہ مسجد ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ نماز عصر ادا کر لی ہے. ابھی یہاں پہ مرد حضرات اور آگے لیڈیز ہیں اور قاری نام الحق صاحب ابھی یہاں پہ سب کو اکٹھا کر کے تو طائف کی زیارات کے بارے میں تھوڑا بریف کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ زیارتوں کی طرف چلتے ہیں. ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਸੇ ਇਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਰੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائبریری ہے جو کہ ابھی بند کر دی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن پاک کے پرانے نسخے بھی موجود ہیں, یہاں تک کہ پتھروں پہ لکھا قرآن پاک بھی موجود ہے اور پرانی کتابیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. لیکن یہاں پر بھی تالا لگا ہوا, یہ سامنے دروازہ ہے اور یہ بھی بند ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کو اندر نہیں دکھا سکتے. نظر آ رہے ہیں پتھروں کے ٹوٹے ہوئے. یہ وہ ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے. اکھاڑ دی گئی ہیں. یہ اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور یہاں پہ انگور کھائے تھے. ابھی یہ تھوڑا سا آگے جائیں گا آپ کو انگوروں والی بیلیں بھی نظر آئیں گی. کبھی پہلے یہ دیکھ لیں, اپنے بائیں جانب دیکھ لیں. جانب الٹے ہاتھ کی جانب یہ ہے مسجد علی. ان مسجدوں میں نمازیں وغیرہ نہیں ہوتی, بس یہ زیارت کے لیے بڑی ہوئی, ان میں نمازیں نہیں ہوتی. ابھی آپ دیکھیں گے ایک بڑا سا پتھر آپ کو نظر آئے گا. جس پتھر کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے ہیں. اوپر سب سے بڑا سا پتھر ہے جس پتھر کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. ہاں جی. اوپر پیچھے والوں کو نظر آیا پہاڑی کے اوپر بڑا سا پتھر, اس کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. کرنا جو باقی رہ گیا وہ بھی اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. عمرہ کرنا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. یہ جو میقات ہے اس وقت ہم موجود ہیں مکہ المکرمہ اور طائف کے بالکل درمیان میں میقات پہ, جس کو قرن المنازل کہا جاتا ہے. یہ طائف سے واپسی پہ جاتے ہوئے میقات آتا ہے. آج ہم اپنے گروپ کے ساتھ, میرے گروپ کا آج آخری عمرہ ہے اور میں آج
यहाँ से हम एहराम बांधेंगे और इंशाल्लाह आज हम इज्तिमाई उम्रा करेंगे। अल्लामा मुफ्ती साजिद बारवी साहब मौजूद हैं, शहजाद बारवी साहब और तमाम ग्रुप के लोग मौजूद हैं। आज हम मिकात कर्नुल मनाजिल से एहराम बांधेंगे और इसको आम ज़ुबान में नमाज पढ़ना पहले बाबा। और इसको आम ज़ुबान में बड़ा उम्रा भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त हम मिकात कर्नुल मनाजिल पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से एहराम बांधेंगे और एहराम बांध कर फिर इंशाल्लाह तलबिया पढ़ते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ सफ़र करेंगे और इंशाल्लाह आज का उम्रा सारा आपको इस व्लॉग में दिखाएंगे। यह है मिकात कर्नुल मनाजिल और अभी हम अंदर एंटर हो रहे हैं। अभी पहले मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद हम एहराम बांधेंगे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह लि अबवाब रहमतिक। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद एहराम बांधेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी का 20वां उम्रा अदा करने के लिए मिकात कर्नुल मनाजिल से एहराम बांध लिया है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ भी बुलंद की हैं। इंशाल्लाह गाड़ी में भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ बुलंद करते हुए मक्का शरीफ की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह आज उम्रा अदा करेंगे। और इंशाल्लाह जैसे ही मक्का शरीफ पे खाना काबा पे पहली नज़र पड़ेगी, आप सब के लिए भी दुआ करूँगा अल्लाह पाक आप सबको भी बार बार हज उम्रा की सादत अता फरमाए। ईशा की नमाज़ का वक़्त है जिसकी वजह से आगे रास्ते बंद किए हुए हैं और अभी हम हरम शरीफ के बिल्कुल पास जो कुबरी है वहाँ पर भी हम उतर गए हैं। तो गाड़ी ज़्यादा आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए तमाम हाजी हमारे यहीं उतर रहे हैं क्योंकि आगे नमाज का वक़्त है। तो अभी पहले हम चलते हैं यहाँ से होटल और वहाँ से खाना वगैरह खा के फिर इंशाल्लाह उम्रा अदा करने के लिए हरम शरीफ में जाएंगे। इशा की नमाज़ अदा हो चुकी है और तमाम नमाजी नमाज अदा करके अपने अपने होटल्स में रूम्स में वापस जा रहे हैं। तो अभी ये सामने मासरुल जवार हमारा होटल आ चुका है। तो अभी हम रूम में जाएंगे, फ़्रेश होंगे, थोड़ा खाना खाने के बाद फिर इंशाल्लाह उम्रा अदा करने के लिए हरम शरीफ में जाएंगे। आपको भी काबा शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे और आप सब के लिए हुजूर की तमाम उम्मत के लिए ढेर सारी दुआएं भी करेंगे। बहुत सारी ऑप्शंस देखने के बाद हाजियों का एक ही चॉइस होती है, हाजियों की अलबैक। तो एट दी एंड हमने अलबैक चॉइस किया कि अलबैक ही खाते हैं। तो अभी रश तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि आप बैठे हम लेकर आते हैं। तो अलबैक खाते हैं, फिर इंशाल्लाह अलबैक खाकर चलते हैं उम्रा अदा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल हराम के पास पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह कुछ ही देर में मस्जिद अल हराम के अंदर दाखिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद खाना काबा पर पहले नज़र पड़ेगी। जी भर के दुआएं करेंगे इंशाल्लाह, फिर तवाफ़ काबा करेंगे। ये बाहर यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल हम मस्जिद अल हराम के गेट नंबर 79 के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही रूहानियत वाले मनाजिर होते हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे रात के वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम सहने हरम में पहुंच चुके हैं और खाना काबा पे पहली नज़र पड़ते ही क्या कैफियत होती है, क्या जज्बात होते हैं, क्या एहसास होते हैं, ये अभी आपको देखने को मिलेंगे जब मैं कैमरा ऊपर करूँगा और आपकी आंखों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर होगा। अभी ये जो आपको कदम नज़र आ रहे हैं ये तवाफ़ करते हुए लोगों के हैं और अभी मैं कैमरा उठाने लगा हूँ। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इस वक्त जो भी मेरा भाई मेरी बहन ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा और उसको जल्द इस दर की हाज़िरी अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हम वो सामने जो ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं उसके पास जाएंगे क्योंकि उसकी बिल्कुल सीध में हजर अस्वद है और हजर अस्वद के सामने से हमारा जो तवाफ़ स्टार्ट होगा। हम पहले इस्तलाम करेंगे, इस्तलाम करने के बाद हमारा तवाफ़ स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह तवाफ़ करते भी हुजूर की तमाम उम्मत के लिए दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक आप सब पे अपना ख़ास करम फरमाए माशाल्लाह। तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद अभी हम यहाँ पे 2 रकत नफल तवाफ़ के अदा करेंगे। उसके बाद हम इस साइड पे ये देखें, ये जो बोर्ड लगा हुआ है इधर है सही यानी कि सफ़ा मरवा। आब ज़मज़म पीने के बाद हम सफ़ा मरवा के लिए जाएंगे। पहले हम यहाँ पर 2 रकत नफल अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ करने के बाद और आब ज़मज़म पीने के बाद अभी हम सही यानी सफ़ा मरवा के लिए जा रहे हैं। ये जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ये सफ़ा की पहाड़ी है और इधर से हमारी सही स्टार्ट होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा मरवा मुकम्मल हो चुका है, जिसको साई कहते हैं। और अभी सफ़ा के मुकाम से सफ़र शुरू किया था और मरवा के मुकाम पर हमारा जो साई मुकम्मल हुई थी, और मरवा के मुकाम पर 2 रकत नफल अदा करके हम वापस पहुँचे हैं। और सफ़ा के दरवाज़े के बिल्कुल पास ही एग्ज़िट गेट है, यहाँ से भी हम बाहर निकलेंगे और बाहर जाकर भी हिजामत करवाएंगे, उसके बाद हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आज एक और उम्रा मुकम्मल हुआ। लेकिन याद रखिएगा, जब तक हम हलक या तकसीर नहीं करवाते, मतलब जब तक हम हिजामत नहीं करवाएंगे, तब तक अहराम की पाबंदियां हम पर लागू रहेंगी, तब तक हम अहराम से बाहर नहीं होंगे। उम्रा तो हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी हम अहराम में हैं, तभी जब तक हम हिजामत नहीं करवाएंगे तब तक हमारा जो अहराम है वो हम उसकी पाबंदियाँ लागू रहेंगी। तभी हरम शरीफ आप देख सकते हैं, बैक साइड पे मस्जिदुल हराम है, और अभी हम मस्जिदुल हराम से बाहर निकले हैं और इब्राहिम खलील रोड पे जाएंगे, वहाँ पर हम हिजामत करवाएंगे और हिजामत करवाने के बाद अहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इस तरह हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बिल्डिंग आपको KFC वाली नज़र आ रही है और जो ऊपर सीढ़ियाँ जाती नज़र आ रही हैं, इस जगह पर खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका घर मुबारक हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर उसके कोई आसार भी मौजूद नहीं है और कोई निशानी भी मौजूद नहीं है। अलबत्ता बताया यही जाता है, कहा यही जाता है कि इस जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक हुआ करता था। तो आज उस जगह पर बिल्डिंग्स, होटल्स और आलीशान इमारतें खड़ी हैं और ये बिल्कुल मक्का टावर के बिल्कुल साथ और मस्जिदुल हराम के बिल्कुल सामने है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा था कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर मुबारक हुआ करता था। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हिजामत करवा ली है, उम्रा मुकम्मल हो गया है। दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको भी उम्रे की बार बार सआदत अता फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।